A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th business studies. Okay. So in the last class we have discussed up to the chapter 8, that is controlling. That was just a part A. Okay. So we have discussed. In today's class we are going to start with the part B of your business studies, that is business finance and the marketing. So today we will start the new chapter of your business studies class 12th, that is chapter 9, financial management. Okay. So in this chapter that we are going to discuss is, first we will deal with the concept, role, objective of financial management. Okay. So we will discuss about what is the financial management, what is the role of the financial management, and what are the different objectives of the financial management. Next we will start with the financial decision. In the financial decision we will discuss about the investment, financing and dividend. Okay. Okay. So in the dividend we will discuss about the meaning and the factors affecting the dividend. Next topic that we will start that is financial planning, concept and importance. So in the financial planning we will discuss about the concept of the financial planning and what are the different what are the importance of the financial planning. Okay. Next we will start or discuss about the capital structure. So in the capital structure we will discuss about the concept, factors affecting capital structure. Next topic and the last topic of this chapter, financial management, that is fixed and working capital. So in this we will discuss concept and factors affecting their requirement. Okay. So all these topic that we are going to cover in this chapter. So we will discuss all these topic one by one. Okay. So firstly we will start with what is the concept, role and objective of the financial management. Okay. So let's get started. So when we talk about the meaning of the financial management, so financial management is concerned with the efficient acquisition and allocation of funds. So in other words, financial management is concerned with the flow of funds and involves decision related to procurement of funds, investment of funds in long term and short term assets and distribution of earning to owners. So in simple words we can say financial management refers to efficient acquisition of finance, efficient utilization of finance, efficient distribution and disposal of surplus for smooth working of company. Okay. So financial management is concerned with the efficient acquisition and the allocation of management. आपको इस टर्म से ही समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे दो टर्म दे रखा है, दैट इज़ फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मीन्स फाइनेंस, मनी, फंड, और मैनेजमेंट मीन्स उन फंड, उन मनी का क्या करना, फाइनेंस का मैनेज करना, उनको मैनेज करना. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद द एफिशिएंट एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स, कि फंड को प्रॉपरली एक्वायर करना, फंड की अवेलेबिलिटी करना और फंड को कहाँ एलोकेट करना, कि कहाँ कहाँ पे हमें फ़ंड को क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ हम फ़ंड को इन्वेस्ट, कहाँ कहाँ पे हम फ़ंड को एलोकेट करेंगे, जैसे जो भी फ़ंड है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो. ओके. सो इन अदर वर्ड्स financial management is concerned with the flow of funds and involve decision related to procurement of fund. ठीक है. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे रिलेटेड होता है, कंसर्न होता है फ्लो ऑफ फंड्स, फंड्स का फ्लो, कैसे फंड्स का फ्लो हो रहा है, एंड इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड. और इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व डिसीजन.
डिसीजन लेना कि फ़ंड को कैसे हम प्रोक्योर करेंगे, फ़ंड को हम कैसे अवेलेबल करेंगे, फ़ंड को इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स को हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे इन द लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म असेट्स, कि हम लोग जो भी फ़ंड को इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म के असेट्स पे करेंगे कि शॉर्ट टर्म के असेट्स पे करेंगे, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्निंग टू ओनर। अब जो भी अर्निंग हुई इन सारे डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो भी अर्निंग हो रही है उस अर्निंग को हम क्या करेंगे, जो भी वर्कर्स हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। मतलब कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सिंपली ये कह सकते हैं कि एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, कि फाइनेंस को एफिशिएंटली क्या करना, एक्वायर करना, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फाइनेंस जो भी फाइनेंस है उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज करना। ऐसा नहीं कि हम जो भी फंड है उनको कहीं पे वेस्ट हो रहा है, उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करना, एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ कंपनी। और जो भी एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूशन करना मनी का, जो भी फंड का, और डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, जो भी सरप्लस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उनको डिस्पोजल करना, मतलब कैसे प्रॉपरली हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ अ कंपनी, कि स्मूथ वर्किंग कंपनी का स्मूथ वर्किंग चलता रहे, तो हम कैसे मनी को क्या कर रहे हैं, मनी का एक्विजिशन कर रहे हैं, मनी को यूटिलाइज कर रहे हैं एफिशिएंटली, मनी का एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ कंपनी। तो सिंपली व्हेन वी टॉक अबाउट दैट इज़ what is financial management, so it relates to the that is decision related to the procurement of funds, investment of the fund in the long term and the short term assets, as well as the distribution of earning to the owners. Or in other words we can also say that financial management refers to the efficient acquisition of finance, efficient utilization of finance, and efficient distribution or the disposal of surplus, or the you can easily write down the efficiently distribution of finance for the smooth working of the company. Okay, so this is the definition of the financial management. Next topic, simply we can understand the meaning of the financial management. Next topic that we are going to discuss, that is some common definition of the financial management. Okay, common definition क्या है financial management की? देखिए, एक तो जो ये फिलिपेटस के अकॉर्डिंग बहुत ही लंबी सी डेफिनेशन दी है, एंड दूसरे हैं हॉवर्ड एंड टॉन, तो उनके भी दी है, तो दोनों को हम लोग डिस्कस करते हैं. So first one is financial. फिलिपेटस के अकॉर्डिंग है, financial management is concerned with the managerial decision that result in the acquisition and the finance of the long term and short term asset for the firm. As such, it deals with the situation that require selection of specific assets or combination of assets, the selection of specific liabilities, as well as the problem of growth and the size of enterprise. The analysis of these decisions is based upon the expected inflow and outflow of fund and their effect upon the managerial objective. Okay, so ये कह रहा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे कंसर्न होता है? मैनेजरियल डिसीजन, मैनेजमेंट में जो एक मैनेजरियल डिसीजन लिया जाता है, दैट रिजल्ट इन द एक्विजिशन, ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या है कि एक्विजिशन फंड का को एक्वायर करना, एंड द फाइनेंस ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म असेट्स, और जो भी लॉन्ग टर्म असेट्स हैं और शॉर्ट टर्म असेट्स हैं उनको फाइनेंस करना. एज सच इट डील्स विद द सिचुएशन दैट रिक्वायर सेलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक असेट्स और द कॉम्बिनेशन ऑफ असेट्स. ठीक है, यहाँ पे वो सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हमको सिलेक्शन करना होता है किसका, कि कौन सा स्पेसिफिक असेट्स हम लेंगे और कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ असेट्स लेंगे विच इज़ रिक्वायर्ड इन दी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, रिक्वायर्ड है. सो द सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक लायबिलिटीज़ एज वेल एज द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ एंड द साइज ऑफ इंटरप्राइजेस. और क्या है कि सिलेक्शन किसका करना,
स्पेसिफिक लायबिलिटीज़ का, कहाँ कहाँ से लायबिलिटीज़ मिल सकती है या हम दे सकते हैं, या उनकी भी फंड का अवेलेबिलिटी कराना, एज वेल एज द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ, जो भी प्रॉब्लम है ग्रोथ की, एंड द साइज ऑफ द इंटरप्राइजेस, साइज टू इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है कि हम कौन सा असेट्स को लेंगे, वो स्पेसिफिक असेट होगा या कॉम्बिनेशन ऑफ असेट्स होगा। सो द एनालिसिस ऑफ दीज डिसीजन इज बेस्ड अपॉन द एक्सपेक्टेड इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड। अब इन डिसीजन को लेना कि कहाँ से हमको लायबिलिटीज़ मिलनी है या हमको देनी है, ग्रोथ की जो प्रॉब्लम है, इंटरप्राइजेस की साइज़ की प्रॉब्लम है, हम कौन सा असेट्स लेंगे, कहाँ से उनको एक्वायर करेंगे, तो इन सारे के डिसीजन किस पे डिपेंड करता है, एक्सपेक्टेड इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड, कि फ़ंड का कितना इनफ्लो हो रहा है, फंड का कितना आउटफ्लो हो रहा है, एंड देयर इफ़ेक्ट अपॉन मैनेजीरियल ऑब्जेक्टिव, और इनका इफ़ेक्ट किस पे, जो भी हम लोग मैनेजीरियल ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं, जो भी मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं, उस पे इनका कैसा इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो सिंपली यही है कि बेसिकली असेट्स और दी फंड को एक्वायर करना, उनको हम कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ से इनफ्लो हो सकता है फंड का, कहाँ से आउटफ्लो हो सकता है। Next definition is financial management involve the application of general management principles to a particular financial operation. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है, एप्लीकेशन होता है, जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है, जनरल मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल है उनको क्या करना, उनको अप्लाई करना टू अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ऑपरेशन, पर्टिकुलर पर्टिकुलर फाइनेंशियल ऑपरेशन के लिए उन जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया कि एप्लीकेशन करना, मतलब अप्लाई करना किसको, जनरल मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं फॉर दी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो सिंपल आपका यही है कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना फंड का, एक्विजिशन करना, फिर इन्वेस्टमेंट करना, फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ कंपनी। सो दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज रोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, सो रोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, all the financial activities of a company are directly or indirectly affected by the financial management. ओके, तो अगर हम लोग देखते हैं कि जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, वेदर इट इज़ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कंपनी में परफॉर्म हो रही है, दे ऑल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, दे ऑल आर अफेक्टेड बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्या होती हैं, अफेक्टेड होती हैं, क्योंकि फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ शुड बी अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि हम फंड का कैसे मैनेज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंपनी, जो भी कंपनी की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट क्या करता है, अफेक्टेड बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। So the common activities and areas which are influenced by the financial management, तो जो भी common activities हैं, areas हैं जो financial management को affect करती हैं, तो क्या क्या हैं, first one is size and composition of fixed assets. Size, जो भी फिक्स्ड असेट्स हैं उनकी साइज़ क्या है और उनका कॉम्पोजिशन क्या है। सो द साइज एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स डिपेंड डायरेक्टली ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। अब फिक्स्ड असेट्स की साइज़ कितना होगा, उनका कितना कॉम्पोजिशन होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट का डिसीजन, कि कितना फिक्स्ड असेट्स पे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, दैट इज़ हाउ मच कैपिटल कंपनी इज़ प्लानिंग टू इन्वेस्ट, कि कितना कैपिटल को इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी प्लानिंग कर रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग फिक्स्ड असेट्स को भी परचेज़ करना पड़ेगा ना, कि अब अगर कंपनी को क्या है, इन्वेस्ट जितना भी करना है वो उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेगी, फिक्स्ड असेट्स को डिसाइड करेगी। तो साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स डिपेंड डायरेक्टली ऑन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो साइज़ है, कॉम्पोजिशन है फिक्स्ड असेट्स का, वो डिपेंड किस पे करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, दैट इज़ हाउ मच कैपिटल
कंपनी इज़ प्लानिंग टू इन्वेस्ट, कि कंपनी कोई भी कंपनी कितना प्लान कर रही है इन्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ अमाउंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करेंट असेट, कितना अमाउंट है और कंपोजिशन ऑफ करेंट असेट्स। पहले तो फिक्स्ड असेट्स था, जैसे मशीनरी, ये सारे क्या होते हैं फिक्स्ड असेट्स होते हैं, ठीक है। सो दैट इज क्वांटम ऑफ द करेंट असेट्स एंड इट्स ब्रेक अप टू इनटू कैश, इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स, ठीक है। तो मतलब उनकी करेंट असेट्स की क्वांटिटी, उनको ब्रेकअप करना इनको कैश में, इन्वेंट्री जो हो रही है और जिसको रिसीव कर रहे हैं। सो द अमाउंट ऑफ करेंट असेट्स एंड इट्स डिवीजन इन कैश, कैश हो गया, ठीक है, जो भी करेंट असेट्स हैं और उनका जो डिवीज़न हो रहा है किसमें, कैश में, या बिल्स जो रिसीव कर रहे हैं, जो इन्वेंटरीज हो रही हैं, स्टॉक्स हो रही हैं, उसमें आर ऑल्सो डिपेंड अपॉन द फाइनेंशियल डिसीजन। वो भी किस पे डिपेंड करती, फाइनेंशियल डिसीजन, क्योंकि सारा कुछ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंस क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों, क्योंकि अगर फंड नहीं होगा, फाइनेंस नहीं होगा, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता, कोई भी ग्रोथ हो नहीं सकती। तो ठीक है, सारे जो भी है करेंट असेट्स का अमाउंट कितना होगा, कैश को हम कहाँ कहाँ डिवाइड करेंगे, बिल रिसीवेबल में, इन्वेंट्रीज में, तो वो किस पे डिपेंड करेगा कि फाइनेंशियल डिसीजन कैसा है, कहाँ कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट कर रही है। सो इट्स डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड असेट्स, क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द कंपनी एंड द इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब ये किस पे डिपेंड करता है कि कितना फिक्स्ड असेट्स है कंपनी के पास, क्रेडिट की पॉलिसी क्या है कि कहाँ से कंपनी क्या है क्रेडिट को लेगी, और इन्वेंट्रीज़, जो भी इन्वेंट्री है स्टॉक को कैसे मैनेज करेगी। तो ये सारे क्या है, यहाँ पे रोल होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। जब प्रॉपरली फाइनेंस क्या होंगे, एक्वायर होंगे, इन्वेस्टमेंट होगा, तभी कोई भी फंक्शनिंग, कोई भी स्मूथ फंक्शनिंग होगी कंपनी में। नहीं तो अगर कोई भी फंड का मैनेज ही नहीं है कि कहाँ से हमें मिलेगा, कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है, कितना इनफ्लो होगा, कितना आउटफ्लो होगा, येट नॉट डिसाइडेड, तो किसी भी कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो टिपिकल हो जाता है कि वो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। सो थर्ड वन इज दैट इज द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स, की जो भी लॉन्ग टर्म फंड है और शॉर्ट टर्म फंड्स है उनका अमाउंट कितना होगा। सो द अमाउंट टू बी रेज्ड फॉर द लॉन्ग टर्म एज वेल एज द शॉर्ट टर्म डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कितना अमाउंट होगा लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए फंड का, वो किस पे डिपेंड करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस का कैसे मैनेज हुआ है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ही क्या करेगी, फाइनेंस को मैनेज करेगी। So the firm which have policy of liquidation prefers to have more of the long-term finance, although with that profit will decrease as company has to pay more interest on the long-term debt as compared to short-term debt, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि the firm which have policy of liquidation, कि जो फर्म है जिनकी पॉलिसी लिक्विडेशन में, मतलब कि लिक्विड के फॉर्म में फंड को रखना है, they have preferred to more ऑफ द लॉन्ग टर्म फाइनेंस, वो क्या प्रेफर करते हैं कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस को वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऑल्दो उसके साथ ही देखते हैं विद दैट प्रॉफिट, उस प्रॉफिट के साथ विल डिक्रीज एज कंपनी हैज़ टू पे मोर इंटरेस्ट, उसके साथ जो प्रॉफिट होता है वो डिक्रीज़ करने लगता है। क्यों, क्योंकि उस केस में लॉन्ग टर्म अगर हम लोग कोई भी डेट लेते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म डेट, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ that is breakup of long term financing into debt, equity etc, ठीक है। तो ये कह रहा है कि firm can raise long term debts by issue of the equity shares as well as the buy of the debentures। जो फर्म होती हैं वो क्या करती हैं, लॉन्ग टर्म डेट को रेस करती हैं, कैसे, या तो शेयर्स को इशू करती हैं या तो डिबेंचर्स को इशू करती हैं, ठीक है। शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करती हैं एंड अदर बोरोड फंड, जो भी बोरोड फंड है
ठीक है, उनको इशू करती है। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प इन दी फिक्सिंग दिस रेशियो। अब ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो इनके रेशियो को फिक्स करती है, कितना शेयर्स को लिया जाएगा, कितने डिबेंचर्स को लिए जाएंगे, कितने जो अदर बोरोड फंड है उनको लिए जाएंगे। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल यही है कि वो इनके रेशियो को फिक्स करती है कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कितना फंड को कहाँ से एक्वायर करेगी। लास्ट वन इज दैट इज ऑल आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये कह रहा है कि ऑल द आइटम्स ऑफ द पीएल अकाउंट, ठीक है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अफेक्टेड बाय द डिसीजन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वो किससे अफेक्टेड होता है? जो भी डिसीजन हो रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। जनरली आइटम रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड इन पीएल अकाउंट। तो जो भी आइटम्स होते हैं किससे रिलेटेड, कि कहाँ पे एक्सपेंस हो रहा है, कहाँ से हमें रेवेन्यू मिल रहा है, वो सारे कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इफ़ वी पे मोर इंटरेस्ट, अगर हम ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे, डेप्रिसिएशन इट विल इंक्रीज एक्सपेंसेस। ठीक है, अगर हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे, डेप्रिसिएशन होगा, तो किसी भी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि हमको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जो भी फिक्स्ड असेट्स हैं उनका डेप्रिसिएशन भी हो रहा है, एंड इट ऑल्सो अफेक्ट दी पीएल अकाउंट। और ये क्या करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी अफेक्ट करेगा। सो रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ा हम लोग ने 5 पॉइंट को एक्सप्लेन किया। दैट इज़ फर्स्ट वन इज साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, साइज और कॉम्पोजिशन क्या थी फिक्स्ड असेट्स की? अमाउंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द करेंट असेट, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स, जो भी अमाउंट है किसका? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड्स का। ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट इक्विटी, जो भी लॉन्ग टर्म के फाइनेंस हैं उनको डेट में, इक्विटी शेयर्स में, इसमें क्या करना है? शेयर्स डिबेंचर्स में, डिफरेंट बोरोड फंड में, या इसमें क्या करना है आपको? डिवीजन करना है। ठीक है, सो ऑल आइटम इन दी प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी एक्सपेंसेस होता है, जो भी रेवेन्यू होता है, उसको हम लोग किस में रिकॉर्ड करते हैं? किस में करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो ये था आपका रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? मीनिंग देखा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, फिर उसके बाद उसके डेफिनेशंस देखे, एंड देन रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सो द मेन and foremost objective of the financial management is to maximize the wealth of the equity shares holder। ठीक है, आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ लिया है, शेयर्स होल्डर, डिबेंचर होल्डर, इक्विटी शेयर्स होल्डर, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो द वन हु होल्ड द इक्विटी शेयर्स आर कॉल्ड एज द इक्विटी शेयर्स होल्डर। ठीक है, सो द मेन एंड द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, जो मेन और फॉरमोस्ट मतलब एकदम इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इज़ टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर्स होल्डर। कि क्या मैक्सिमाइज करना? जो भी वेल्थ है, जो भी मनी है, फंड है इक्विटी शेयर्स होल्डर का, उसको मैक्सिमाइज करना। सो द फाइनेंशियल मैनेजर इन अ कंपनी मेक्स डिसीजन फॉर द ओनर। जो भी फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं कंपनी के, वो डिसीजन ओनर्स के लिए बनाते हैं। दैट इज़ द शेयर्स होल्डर ऑफ द फर्म। जो भी शेयर्स होल्डर्स होते हैं फर्म के लिए, उनके लिए फाइनेंशियल मैनेजर क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। सो ही मस्ट टेक सच डिसीजन विच विल अल्टीमेटली प्रूव गेनफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द शेयर्स होल्डर। ठीक है, तो वो जो है फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो डिसीजन ऐसा लेगा जो अल्टीमेटली ये प्रूव करे कि दिस विल बी द गेनफुल फॉर द शेयर्स होल्डर। ये क्या होगा? गेनफुल होगा किसके लिए? शेयर्स होल्डर के लिए। एंड शेयर्स होल्डर गेन ओनली व्हेन द प्राइस ऑफ देयर शेयर्स इंक्रीजेज इन द मार्केट। और शेयर होल्डर तभी गेन करेगा जब जो प्राइस है शेयर्स की वो मार्केट में इंक्रीज
करेगी. सो फाइनेंशियल डिसीजन विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर इज कंसिडर्ड वेरी एफिशिएंट डिसीजन. ठीक है, तो जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लिया जा रहा है विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द शेयर्स, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि जो भी वैल्यू है शेयर्स की वो इंक्रीज होगी, इज़ कंसिडर्ड वेरी एफिशिएंट डिसीजन. वो क्या है, वो डिसीजन बहुत एफिशिएंटली लेना चाहिए. सो ऑन द अदर हैंड द फाइनेंशियल डिसीजन विच ब्रिंग्स फॉल इन वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स इज कंसिडर्ड पुअर डिसीजन. ऑन द अदर हैंड जो भी फाइनेंशियल डिसीजन होता है विच ब्रिंग्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, जो क्या करता है, जो वैल्यू है इक्विटी शेयर्स की फॉल करता है, इज कंसिडर्ड पुअर डिसीजन. तो ऐसा डिसीजन जो इक्विटी शेयर्स होल्डर के फेवर में नहीं हो रहा है, वो सारे डिसीजन को क्या बोलते हैं कि वो पुअर डिसीजन है. ठीक है, क्योंकि कोई भी क्योंकि कोई भी इक्विटी शेयर्स होल्डर किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, तो ऐसे डिसीजन लेना जो किसको प्रेफर नहीं कर रहा है, इक्विटी शेयर्स होल्डर को प्रेफर नहीं कर रहा है, तो वो सारे डिसीजन क्या होंगे, दैट विल ऑल बी द पुअर डिसीजन. सो दिस ऑब्जेक्टिव of maximizing the wealth of the equity shares automatically fulfill many other objectives. ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमाइज करना वेल्थ किसका, इक्विटी शेयर्स का, वो ऑटोमेटिकली फुलफिल मैनी अदर ऑब्जेक्टिव. वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, और भी अदर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर देता है. सो एज इक्विटी शेयर्स होल्डर गेट शेयर फ्रॉम द रेसिडुअल इनकम ओनली. अगर क्या है, जो भी इक्विटी शेयर्स होल्डर हैं वो इनकम गेट शेयर्स फ्रॉम द रेसिडुअल इनकम, जो भी रेसिडुअल इनकम मिल रही है वहाँ से शेयर करते हैं. दैट इज़ दे आर given dividend only after the claim of the suppliers, employees, lender, creditor and any other legitimate claimants. So ठीक है, they are given dividend, उनको dividend तब मिलता है जब after the claim जो भी supplier हैं, employees हैं, lender हैं, creditors हैं, उनको फंड देने के बाद क्या है, equity shares holders को दिया जाता है. Therefore if the shares holders are gaining, अगर शेयर्स होल्डर जो है वो गेन कर रहे हैं, इट ऑटोमेटिकली इम्प्लाइज दैट ऑल अदर क्लेमेंट्स आर ऑल्सो गेनिंग. मतलब अगर आप ये सोचो कि इन सारे जो भी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको फंड देने के बाद शेयर्स होल्डर को दिया जा रहा है, तो शेयर्स होल्डर अगर गेन करें तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो पहले थे वो गेन कर ही रहे होंगे. ठीक है, तो यही कह रहा है कि इफ़ द शेयर्स होल्डर्स आर गेनिंग, अगर शेयर्स होल्डर गेन कर रहे हैं, इट ऑटोमेटिकली इम्प्लाइज दैट ऑल अदर क्लेमेंट्स आर ऑल्सो गेनिंग. तो इसका ये मतलब हो गया कि और अदर जो भी क्लेमेंट्स है वो भी गेन कर रहे होंगे. फिर देखिए यहाँ पे क्या है, मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर्स होल्डर. जो भी मैक्सिमाइज है वेल्थ मनी का इक्विटी शेयर्स होल्डर का, तो है उसमें क्या है, फर्स्ट वन इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा. नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो. मेंटेनेंस ऑफ द लिक्विडिटी, जो भी लिक्विडिटी है उनका प्रॉपर मेंटेनेंस हो. एंड मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल कमिटमेंट विथ क्रेडिटर्स, और जो भी फाइनेंशियल कमिटमेंट हुई है क्रेडिटर्स से उनको भी कंटिन्यूसली उनकी भी बातों को ध्यान में रखना. ठीक है, सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स does not mean that the financial manager should involve in manipulative activities to bring rise in price. ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो इंक्रीज हो रही है वैल्यू इक्विटी शेयर्स की, तो इसका ये मतलब नहीं कि जो फाइनेंशियल मैनेजर्स है शुड इन्वॉल्व इन मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज़ टू ब्रिंग राइज इन प्राइस, कि वो ऐसी कोई मैनिपुलेटिव एक्टिविटी कर रहा है कि जिससे प्राइस को राइज हो रही है. द राइज इन प्राइस मस्ट कम विद द ग्रोथ ऑफ द फर्म. मतलब जो अगर प्राइस अगर राइज हो रही है तो उससे क्या होगा कि फर्म का ग्रोथ होगा, विथ इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म, विथ सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल द पार्टीज़. इंक्रीज प्रॉफिट अगर फर्म का बढ़ेगा तो एंड विद द सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल द पार्टीज़, सारे जो भी पार्टीज़ हैं उनको सेटिस्फेक्शन एसोसिएटेड विद द
कंपनी। वो सारे क्या हैं, कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं कि ग्रोथ होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, जो भी पार्टीज़ हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी क्या है, सेटिस्फाई हैं। सो विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द इक्विटी शेयर्स होल्डर, फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली गेट अचीव। ठीक है, जैसे ही हम ऑब्जेक्टिव होगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इक्विटी शेयर्स होल्डर का, तो ये सारे ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, अचीव हो जाएंगे।